अंदर और बाहर। यार ये बहुत डिफिकल्ट है। नहीं हो रहा यार ये ट्रिक नहीं होगी। Okay, look at me. Inside, outside. अरे यार कुछ भी हो, लाइफ चलती ही जाती है। कई लोग तो पूरी लाइफ नहीं देख पाते, बहुत Get चीजें। past your first crush, Always, your first of break. course. Yeah. अरे ये छोड़ के गया तो Yeah. मतलब मैं तो, अरे इसके पीछे पागल थी मैं। वो 9th क्लास में मुझे आके बोला कि मुझे 10वीं की प्रिपरेशन करनी है, 10वीं में जाने के बाद CBSE बोर्ड आने वाले हैं, तो मुझे कंसंट्रेट करना है उस पर, इसलिए मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता रिलेशनशिप हमारा सो कॉल्ड। मुझे लगा मेरी जिंदगी खत्म, पहले अपनी पर्सनालिटी को ग्लैमरस बनाओ, कोई भी कपड़ा फिर ग्लैमरस लगेगा उसके ऊपर। मेरे को ना सोशल क्लाइंबर का टैग से डर लगता है, तो मेरे तो सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत धक्का लगेगा। Confidence is not, they like me. Confidence is, I'll be fine if they don't. To call a spade is a skill. And to be honest, is an art. I'm so glad कि हिंदी सिनेमा में बहुत दिनों के बाद एक ऐसी एक्ट्रेस आई हैं जो बेखौफ हैं, बिंदास हैं. I'm so proud of you, Taapsee Thank Pannu. you so much, Africa. That was How a are you? wonderful introduction. You know, you have a mind and you speak your mind. Yeah, as far as I'm not hurting an individual and not making remarks which, you know, might hurt people below the belt and it's ethically wrong, I will talk. I will Always. speak my mind, yeah. Always. And it's so refreshing. It is so refreshing. I keep meeting a lot of people in the industry who have been doing it for so many years. Believe me, you are a fresh breath of air. Thank you. Don't change. I'm not going to change. अभी 8 साल हो गए, didn't have a reason to change. Yeah. And now the people have started loving me for this, so all the more reason to stay the same. Bilkul. Any actress who's been here for about 8 to 9 years has made a conscious effort to transform herself into a diva. But you're not a diva. आप वैसे ही नेचुरल साउंड करती हैं, वैसे ही गर्ल नेक्स्ट डोर की तरह बिहेव करती हैं, आप कुछ भी बोल देती हैं, which is such a refreshing thing because you're not controlled in your behavior, you're not overly composed. But who said an average Indian girl cannot feel glamorous or talk like a, you know, someone who is strong and can be looked up to? Who said average means that, you know, you cannot be looked at someone like, you know, wow. मतलब वो सब divas के साथ ही क्यों associate होते हैं ऐसे word? I think an average Indian girl is fabulous. I mean, the fact that you are a woman and you've come up till here in a world which does infanticide to feticide to education नहीं मिलती है, to काम नहीं करने को मिलता है, to अपने decision खुद नहीं ले सकते हो, अपना choose किया हुआ काम नहीं कर सकते हो, काम करते भी हो तो फिर तुम्हें बोला था तुम्हारे रूट गलत है, तुमने तो ये करके करा होगा, कितनी चीजें हैं। अगर उसके बावजूद if you have reached any level in your life as a woman, I think you are yourself a living example of something big and good, and it's good, it's fine to be average, and I think that's my biggest USP, that I'm an average Indian girl. Wow, how nice. I'm an average girl too. Yeah. अच्छा, और आप 2 बहनें थी। हाँ जी। शगुन एंड यू। हाँ जी। You know, अगर घर में भाई नहीं होता तो बड़ी बहन और जल्दी बड़ी होती है। हाँ। ऐसा हुआ आपके साथ? मुझे शौक था बड़ा जल्दी होने का। मुझे याद है जब मैं स्कूल कॉलेज में थी एंड मैंने मॉडलिंग करके थोड़ा बहुत पैसे कमाने शुरू किए थे, तो अपने खुद के पैसे तो मैं मतलब खुद की खर्च तो मैं अपने आप ही हैंडल करती थी, बट अपनी बहन के खर्चे भी खुद हैंडल करने लग गई थी। कि मुझे था कि मम्मी पापा से पैसे नहीं मांगने, कॉलेज की फीस देते हैं बस, और उससे ज्यादा कुछ पैसे नहीं मांगने, तो फिर अपनी बहन के भी खर्ची मैं खुद देती थी। तो वो आउट, एंड इट्स नॉट लाइक उसने मांगी या मेरे घर वालों ने कहा, सो जस्ट दैट आई लव्ड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस सॉर्ट कि मैं खुद कर सकती हूँ। तो आई थिंक वो अभी तक चलता आ रहा है, खुद कर सकती हूँ मैं कोई मतलब मत सपोर्ट करो, मतलब मेरे साथ चलो, बट मेरे को ऐसे सहारा मत दो। शायद वही लड़की पिंक में नजर आई थी हमको, ज्यादा ऐड ऑन नहीं किया था आपने। You were the same. Yeah, I mean apart from the fact that fortunately मेरे साथ ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ लाइफ में, बट अगर होता तो शायद मैं भी मीनर उड़ाई बनती। Yeah, but the demeanor was the same probably. है ना? The girl who can do everything on her own. Yeah, who is unapologetic about who she is and what she does. उसने कुछ गलत नहीं किया तो वो फिर क्यों डर के रहेगी? डर के रहेगी। अच्छा, how was your relationship with the class teachers? क्लास टीचर्स, आई वाज अ टीचर्स पेट। हाँ, सो मेरे को फ्रंट बेंचर्स
हमेशा आंसर करने वाली क्लास में, मतलब अच्छे से पढ़ाई करने वाली। मैं क्लास में अटेंडेंस ज्यादा नहीं होती थी मेरी। इनिशियल ईयर्स में कुछ होती होगी कि 100% अटेंडेंस है इस लड़की की इनिशियल ईयर्स में, मतलब चौथी, पांचवी, छठी क्लास में। उसके बाद जैसे बड़ी होती गई ना, मैं को करिकुलर एक्टिविटीज में इतना डूब गई थी। डांस करती थी, स्कूल और कॉलेज के लिए डिबेट्स बोलती थी, एंड मतलब परफॉर्मेंसेस वगैरह देती थी इधर उधर डांस की एंड ऑल दैट। सो अपना खुद का ग्रुप चालू किया मैंने, तो उस वजह से अटेंडेंस बहुत बहुत लो थी मेरी, बट नंबर हमेशा अच्छे आते थे क्योंकि पढ़ाई का जेन्युइनली शौक रखती थी, जिसकी वजह से टीचर्स मुझे जो पसंद करती थी वो बहुत पसंद करती थी। कुछ एक दो को नहीं पसंद थी मैं, क्योंकि उनको लगता था ये क्लास अटेंड नहीं करती है तो मतलब एक गलत एग्जाम्पल पोर्ट्रे कर रही है सबके सामने कि क्लास अटेंड नहीं करती है, तो देखते हैं ये नंबर कैसे लाएगी। बट फिर नंबर आ जाते थे तो फिर उन लोगों को और लगता था कि मतलब ये लोग कहीं इसको फॉलो ना करना शुरू कर दें टाइप्स। बट जिन टीचर्स को मैं पसंद थी वो मुझे बहुत पसंद करती थी। राइट। और स्कूल में अक्सर बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है, कुछ लड़कियों के फ्रेंड नहीं होते हैं। हाँ। और वो बहुत अकेलापन फील करती हैं, कुछ को डिप्रेशन हो जाता है, कुछ को लो सेल्फ एस्टीम इश्यूज होते हैं। व्हेन यू वर एन एडोलेसेंट, आपकी प्रॉब्लम क्या थी? मेरी प्रॉब्लम, मेरे को ना बहुत कुछ करना होता था और टाइम बहुत कम लगता था मुझे हर चीज में। मैं स्पोर्ट्स में भी जाना चाहती थी, मैं डिबेट्स में भी जाना चाहती थी, मैं डांस भी करना चाहती थी और मेरे को पढ़ाई भी करनी थी। तो शुरू से मेरे अंदर ना बहुत बहुत कुछ करने की इच्छा रही। मैं अपने आप को बड़े ऑनेस्टली बोलती हूँ, मैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। ये सोचते हो कि अच्छा ये नहीं मिला तो भगवान जाने मेरा क्या होगा इसके बाद तो मेरी जिंदगी का। तो वो चाहे वो बचपन के अंदर हो, चाहे वो बड़े होके हो, चाहे वो काम कर रहे हो तब हो, हर चीज के बाद लगता है कि ये नहीं मिला तो पता नहीं क्या होगा। वो पता नहीं अपने आप पे शायद कॉन्फिडेंस नहीं होता कि क्या, बट ये ध्यान रखो कुछ भी हो लाइफ चलती ही जाती है। एंड भगवान ने तुम्हारे को ऐसा बनाया है कि तुम्हारे अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट दिया है जो शायद कई लोग तो पूरी लाइफ नहीं देख पाते। तो ऐसा मत सोचो कि ये नहीं मिला तो शायद कुछ नहीं मिलेगा। बहुत है, बहुत गेट पास्ट योर फर्स्ट क्रश, योर फर्स्ट ब्रेकअप। मतलब वो एक छोटा है हल्का फुल्का एग्जाम्पल है। कितने आंसू बहाते हैं हम लोग बिगनिंग में रिलेशनशिप्स पे, अरे ये छोड़ के गया तो मतलब मैं तो देवदासी बन जाऊंगी, पता नहीं क्या हो जाएगा। फिर उसको लगता है कि अरे इसके पीछे भाग होती है। तो ऐसा ही होता है पूरी लाइफ में, छोटी छोटी चीजों के साथ भी ऐसा होता है, बड़ी के साथ भी ऐसा होता है। Yeah, so who was your first crush and in which class? I think क्रश तो बहुत होते हैं, बहुत अर्ली से शुरू हो जाते हैं क्रश को, कोई पसंद आया एंड ऑल दैट। बट कहते हैं ना जिसको बोलने की हिम्मत हो के, you start telling a person that you like a person and all that, and you start having that moment कि you spend time with each other. वो 9th क्लास में हुआ था। एंड आई रिमेम्बर बहुत कुछ महीने ही बात हुई और उसके बाद बात खत्म हो गई, क्योंकि उसने मुझे आके बोला कि मुझे 10वीं की प्रिपरेशन करनी है, 10वीं में जाने के बाद सीबीएसई बोर्ड आने वाले हैं तो मुझे कंसंट्रेट करना है उस पर, इसलिए मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता रिलेशनशिप हमारा सो कॉल्ड। थोड़ा लाउजी नहीं था? वेरी वेरी लेम एंड आई वाज सो अपसेट। मुझे लगा मेरी जिंदगी खत्म, अब तो मतलब मैं तो बिल्कुल एकदम देवदासिनी ही बन के रहूंगी। मैं जाके अपने घर के पीछे पीसीओ में 2 रुपए के सिक्के डाल डाल के मैं जो रोई हूँ, क्योंकि उस टाइम फोन नहीं होता था हमारे पास, लैंडलाइन होती थी। तो बहुत अभी देखती हूँ मेरे को हंसी आती है अपना, मैं कितना टाइम वेस्ट किया उसके ऊपर यार। तो आज आपको मालूम है वो लड़का कहाँ है? हाँ मतलब बहुत पता ही है, मतलब बिकॉज़ वी स्टिल हैव कॉमन फ्रेंड्स जो मेरे स्कूल के कुछ दोस्त हैं, तो पता चलता ही रहता है। तो अब तो मतलब इट्स अब हंसी आती है एक्चुअली। टोटली। अच्छा, स्कूल हो गया, अब आप कॉलेज में आई। Now that period of ragging and making new friends and how am I looking? Do I have the right dressing sense? Am I hanging out with the right people? वो फेज ऐसा था कि उस समय क्योंकि मैं इतनी गीक होती थी, पढ़ाई में इतनी ज्यादा घुसी होती थी सारे समय, नहीं तो को-करिकुलर एक्टिविटी में, तो वो श्रृंगार एंड ऑल के अंदर मेरा अटेंशन इतना था नहीं। तो पहली बार जब यूनिफॉर्म से बाहर निकल के तुम कॉलेज में जाते हो तो नॉर्मल कपड़े पहनने शुरू होते हो, तो तुम्हारे को अब तुम्हें लगता है कि अच्छा तैयार होना पड़ेगा रोज, क्योंकि अब तुम जिस तरीके के कपड़े पहन रहे हो वो तुम्हारी पर्सनालिटी जज करेगा। क्योंकि अब तो यूनिफॉर्म में थे तो सबका सेम था, तो वो चीज जो थी स्टार्ट्स वर्किंग ऑन अ गर्ल्स माइंड कि अच्छा अब वो लड़की ने वो कपड़े पहने हैं तो वो मतलब वो पतली है इसलिए उसका मतलब बॉडी टाइप अच्छा है, बेटर है मुझसे, इसलिए फिर वो वाले बॉडी टाइप, वैसा बॉडी टाइप
मिलने की इच्छा रखना, कपड़े, पहले तो मैं बहुत ही रैंडम, मतलब मैं तो खुद ही एम्बैरेस हो जाऊं अपनी फोटोग्राफ्स देख के वहां पे, क्या मैं जीन्स और शर्ट अजीब सी वो बॉयज, हाँ लिटिल, मतलब कन्वीनियंट ड्रेसिंग होती थी मेरी, जिसमें ज्यादा समय ना लगे, जल्दी से कुछ भी पहन लो और चल पड़ो, स्नीकर्स डाल के एंड डेनिम्स एंड टी शर्ट और शर्ट डाल के बंडाना सा पहन के मैं निकल पड़ती थी। एंड मेरे को अब देखी मेरी फोटोज, मेरे को लगता है कि तभी मेरे कॉलेज वाले मेरे को आइडेंटिफाई नहीं करते आज की डेट में देख के कि ये वो तो नहीं हो सकता है कोई और बिल्कुल नहीं लगती वैसे मैं पहले थी। और आपके सीनियर्स और जूनियर्स के साथ आपकी रिलेशनशिप्स अच्छी थी? हाँ, मतलब वो सही थी, मतलब मेरे सीनियर्स जूनियर्स दोनों के साथ मेरी रिलेशनशिप अच्छी थी। मैं खुद अपना डांस का ग्रुप वहां पे मैंने बनाया, क्योंकि मेरे को शौक था बहुत परफॉर्म करने का। एंड मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज था जहाँ पे गर्ल्स टू बॉय रेशियो बहुत खराब होता है। 60 बच्चों की क्लास में 10 ही लड़कियां होती हैं, बाकी 50 लड़के होते हैं। तो मैंने ऑल गर्ल्स एक डांस ग्रुप बनाया, जिसमें चारों ईयर की लड़कियां छांट के मैंने सेलेक्ट करके उनको डांस सिखा के फिर कंपटीशन में जाते थे, जीतते थे बहुत, 2 साल हम बहुत जीते हैं। तो वो मेरी बहुत प्यारी मेमोरीज है कॉलेज में। आपने तो कुछ ऐप वगैरह भी डिजाइन कर दिया? वो फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट था मेरा, जिसमें वन ऑफ दोस टीचर्स हु थॉट कि यार ये पास नहीं होनी चाहिए, ये क्लास अटेंड नहीं करती, उस तरह के टीचर ने मुझे और मेरे कुछ 1-2 फ्रेंड्स को धमकाया था कि देखते हैं कैसे पास होते हो तुम। तो वो दोनों फ्रेंड्स मेरे जो लड़के थे वो भी क्लास अटेंड ज्यादा नहीं करते थे और मैं भी नहीं करती थी। रीजन हम सबके अलग अलग थे, पर हमने कहा चलो साथ में हम तीनों ग्रुप बनाते हैं और कुछ बनाते हैं ऐसा कि ये क्वेश्चन ही ना पूछ पाए हमसे। अच्छा। वो उस टाइम आईफोन इतना कोई एस्टैब्लिश्ड डिवाइस नहीं था, तो वो हमने कोई ऑब्जेक्टिव सी सीख के, एक ऐसी लैंग्वेज जो करिकुलम में ही नहीं थी और जो इतने लोग जानते नहीं थे उस टाइम पे, क्योंकि वो लैंग्वेज यूज करके ऐप बनते थे जो कि ज्यादा लोग जानते नहीं थे। तो हमारे टीचर्स ने भी कुछ पढ़ा नहीं था उस लैंग्वेज के बारे में, हमने वो लैंग्वेज सीख के ऐप बना डाली और वो फिर वाइवा के अंदर उनसे क्वेश्चन ही ना पूछे गए और वो फिर इतना सक्सेसफुल हो गया प्रोजेक्ट कि वो उन्होंने यूनिवर्सिटी लेवल पे भेजा था हमारे कॉलेज को रिप्रेजेंट करते हुए, वो वाला प्रोजेक्ट। सो हाँ, तो वो ऐसे टेढ़े ख्याल मेरे दिमाग में शुरू से आते हैं। बट दैट्स सो नाइस। अच्छा, अक्सर स्टूडेंट जिनको हम देख के एक ओपिनियन बना लेते हैं, टीचर्स खास तौर से ओपिनियन बना लेते हैं, वो बाद में दे थ्रो अप अ सरप्राइज। Yeah, I think because in life, some do, some don't. होता क्या है कि टीचर्स को होता है कि जो हमारी बात माने बस वही वो ही सही है। बाकी कुछ लोग ऐसे जो सो कॉल्ड रिबेल इन अ गुड वे में निकल जाते हैं, जिनको क्वेश्चनिंग करने की आदत होती है कि मैं ये क्यों मानूं, इसमें ऐसा क्या है। हम काफी लोग ना क्वेश्चन नहीं करते हैं, चाहे वो टीचर्स हो, चाहे हमारे पेरेंट्स हो, चाहे हमें जो भी सिखाया ये ऐसा ही होता है, भाई ऐसा क्यों होता है, लॉजिक तो दो इसके पीछे मुझे। तो वो लॉजिक नहीं पूछते, इस वजह से कई लोग टीचर्स के पेट बन जाते हैं, कई नहीं बनते हैं। वो जज नहीं, वो जस्टिफिकेशन नहीं होता तुम्हारे अच्छा या बुरा स्टूडेंट होने का। सो आई थिंक उस लॉजिक से मैं तो कभी अच्छी स्टूडेंट नहीं थी, क्योंकि मैं कभी बिना किसी लॉजिक के कोई चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी। My gosh, that's something that happened with me too. Yeah, lot of us who probably end up making a mark in some or the other way are the ones who probably had the strength to question. Yes, and we were not probably the most desired students. Yeah, है ना, मतलब not the ones। मेरे को याद है जब मेरे 12th क्लास के अंदर ही मेरे कुछ 90% एग्रीगेट आए थे और मेरे 90 एग्रीगेट आए थे। आई वाज अ नॉन मेडिकल स्टूडेंट एंड किसी ने मेरा ना रिजल्ट भी चेक नहीं किया था, ये सोच के कि ठीक है ये 5 से 10 या 15 के बीच में आ जाएगी कहीं। किसी ने सोचा ना मैं 2nd नंबर पे आ जाऊंगी, तो किसी ने मेरा रिजल्ट ही चेक नहीं किया था, ये सोच के कि अच्छा ये तो नहीं टॉप 3 की होगी। तो इस वजह से वो उस टाइम पता नहीं कैसे अच्छा हो गया, पढ़ाई काफी करी थी मैंने, तो थैंक गॉड हो गया, वरना बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती। तो ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करते लोग इस तरह के बच्चों से ज्यादा पढ़ाई। लेकिन एकेडमिक्स को हम कभी कभी अंडर एस्टिमेट करते हैं उस दौर में, नहीं करना चाहिए, राइट? बिकॉज़ दैट शेप्स अप योर पर्सनालिटी। यस इट डज। इट्स नॉट अबाउट कि तुम जो पढ़ रहे हो उसको कितना यूज करोगे, इट्स अबाउट तुम्हारी लर्निंग कैपेसिटी बढ़ाती है वो, कि तुम कितनी चीजें लर्न कर सकते हो, किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। कोई तुमसे इस टाइम नहीं पूछ रहा वो इक्वेशंस जो तुम रट के आए हो 11th 12th में, मैं मानती हूँ ये बात, बट तुम कितनी चीजें तुम दिमाग में रख सकते हो, उसको कितना तुम सही टाइम पे लिख सकते हो, वो सब चीजें जो है वो तुम्हारी जो प्रैक्टिस है वो उस टाइम होगी, तभी तुम अभी कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। How nice. All you school and college going students, listen to her. Please study. अच्छा, वो दौर एक ऐसा होता है 2021 में where probably you don't know what you want to do and that is the time where you have to make that choice कि मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन किस में करना है। Do I have to get an MBA or what, you know? वो टाइम कैसा होता है? वो टाइम ना मेरे लिए उस समय बहुत क्रिटिकल था, क्योंकि मेरे को पता था कि ये मेरी आखिरी डिग्री होने वाली है। ये मुझे ऐसी जगह से करनी है कि
I should be proud of it for the rest of my life to be able to show my kids that मैंने ये करी थी. और वो डिसाइड करेगी तुम आगे तुम्हारी जॉब कहाँ स्टार्ट होगी. तो ये बहुत क्रिटिकल लगती है मुझे. तुम्हारी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, तुम सोच समझ के डिग्री वो चूज करना और कॉलेज चूज करना जहां से करने वाले, क्योंकि वो शायद काफियों की जो लोग डिसाइड करते हैं मास्टर्स करने की, मोस्ट ऑफ देम एंड देयर एजुकेशन विद मास्टर्स. मैं चीजें अच्छे से बेच सकती हूँ, मुझे लगता है कि मैं अच्छे कॉन्सेप्ट्स क्रिएट कर सकती हूँ, मुझे लगता था. तो इसलिए मैंने MBA करने की इच्छा रखी कि मैं वो करूंगी, और वो करने के पहले ये हो गया. So I think God had better plans for me. Yeah. So that's why I'm here. Now let's talk about your career. 8 to 9 years in this profession. Yeah. And आपने इतनी खूबसूरती से लोगों को कन्विंस किया है that it's not about just the looks, it's not about just the glamorous clothes that you're wearing, it's not about only being in controversies and news to be talked about, it's your skill that matters. 2 बार आप मिस्टर बच्चन के साथ काम कर चुकी हैं, जो अपने आप में कहता है ये बात, you are a good actor. A person like Sujoy Ghosh, who's working with you, who's worked with Vidya Balan and very, very good actors including Amitabh Bachchan. He's working with you. Yeah. I think it's a huge achievement to get all these directors to work with you when you don't really have the easiest access to them, let's say that. ऐसा नहीं है कि मेरे कोई जान पहचान वाले यहाँ पे हैं मेरे लिए फोन कॉल करने को तो इनसे मिल लो. मुझे तो मिलेंगे भी नहीं लोग, मुझे ऐसा लगता था पहले. अब एटलीस्ट चलो मिल लेंगे, अभी पर पता नहीं पिक्चरें देंगे कि नहीं जो मुझे करनी है. बट वो समय जब मैंने चालू किया था तो मिलते भी नहीं. मेरे को बोला गया था आपसे तो मिलने में भी इंटरेस्टेड नहीं है लोग. आप मतलब हजारों लोग आते हैं न्यू कमर्स, इसको क्या टाइम, डायरेक्टर के पास कहाँ टाइम है मिलने का. मेरे पास एक ही रास्ता था, जो मेरे पास अपॉर्चुनिटी है उसमें से बेस्ट चूज करके अपना इतना बेस्ट दो कि तुम्हें नोटिस करेंगे ही करेंगे. और मुझे ये पता था कि अगर मैंने अच्छा कर दिया ना कुछ तो नोटिस करेंगे और फिर मुझे दोबारा काम मिलेगा. शायद इसी वजह से ट्रैक रिकॉर्ड रिपोर्ट कार्ड मेरी डिसेंट रही है कि मेरे सारे डायरेक्टर्स ने मुझे रिपीट किया है. दोबारा 2 बारी तो एटलीस्ट मैंने काम किया है सबके साथ. अब बच्चन सर के सभी 2 बारी काम कर चुके हैं. एज एक्टर्स इट विल बी ओनली अक्षय एंड मिस्टर बच्चन who's worked with me. As directors, David sir has worked with me twice. Neeraj sir has worked with me twice in Baby and Naam Shabana. And it's Shujit Da who's worked with me in Pink and Running Shadi as producers in both the films. Wow. It is Shujoy now and Anurag Kashyap who's worked with me in Manmarzia and now Sand Ki Aankh as a producer. And don't be surprised I'll work with Shujoy again. क्योंकि मैंने इतनी इच्छुक हूँ मैं वो करने के, तो इसलिए मेरे डायरेक्टर्स जो हैं वो शायद नोटिस करते हैं कि मैं कितनी एक्साइटेड हूँ पिक्चर को लेकर और कितना अपना आपको डेडिकेट कर रही हूँ. तो इस वजह से वो कहते हैं ना रिपोर्ट कार्ड जैसे का अच्छी थी तो इस वजह से दोबारा काम दे देते हैं. आपके रिपोर्ट कार्ड तो हमेशा अच्छा रहा है. 90% रिपोर्ट कार्ड मेरे माँ बाप कभी मुझे आज तक किसी चीज के लिए रोक नहीं पाए, क्योंकि वो कहते हैं लड़की कुछ भी करे रिपोर्ट कार्ड में नंबर अच्छा आ जाती है. That is so good. उनका क्या होगा जो बात भी नहीं मानते माँ बाप की और रिपोर्ट कार्ड भी अच्छा नहीं लाते. हाँ भाई, ये तुम्हें अगर अपनी बात मनवानी है अपने पेरेंट्स से तो बस रिपोर्ट कार्ड में अच्छे नंबर. बट ये क्या ट्रेजेडी है ना कि बस नंबर अच्छे लाओ, बाकी सारे गुनाह माफ है. हाँ, मतलब वो एक हाथ दे एक हाथ ले वाला हिसाब हो जाता है. एंड इंडस्ट्री में आई थिंक अगर आप अच्छे दिखते हो और अच्छे कपड़े पहनते हो तो आधे से ज्यादा गुनाह माफ है. हाँ, कुछ किसी तरह का परसेप्शन आपका बिल्ड हो जाएगा कि आप भैया बड़े दीवाइश हैं, जैसे कहते हैं ना कि आप इस तरह के फैंसी कपड़े डाल सकते हैं. There are many actresses who've been surviving for the past 15-16 years with just their looks. हाँ, so वो मतलब बड़ी सैड बात है. बताओ उनके पास मोटिवेशन है इंडस्ट्री में रहने का बेसिस देयर क्लोथ्स. मुझे तो उनके लिए बुरा लगता है ये सोच के, मतलब कि क्या मोटिवेशन होगी कि आपको एक्टर इसलिए बनना है क्योंकि आप अच्छे कपड़े पहनती हैं, मतलब इसलिए आप अभी तक एक्टिंग कर रही हैं, which is really sad I feel. और मुझे ना कपड़े कभी ऐसे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि तुम्हारी पर्सनालिटी को ओवर पावर कर जाए. मतलब तुम्हारी पर्सनालिटी इतनी ग्लैमरस नहीं है जितना तुम्हारे कपड़े हैं. पहले अपनी पर्सनालिटी को तो ग्लैमरस बनाओ, कोई भी कपड़ा फिर ग्लैमरस लगेगा उसके ऊपर. सो आई थिंक योर कॉन्फिडेंस इज योर बिगेस्ट सेक्स अपील. आई फील इफ यू कैरी दैट देन कोई भी एक नॉर्मल टी शर्ट जीन्स भी तुम्हारे ऊपर बहुत जबरदस्त लगेगी. वन थिंग दैट सुजीत दा सेज व्हिच आई रियली एडमायर इज लाइक I'm unpolluted. As an actor or as a person के मैं pollution में नहीं घुसी हूँ. इंडस्ट्री का एक pollution जो है ना कि एक मैनेजर और एक बॉडी लैंग्वेज और एक प्रोजेक्शन अखबारों में नजर आ रहे हैं कि नहीं, the social circuit
ऑल दैट। मैं सब मुझसे पूछते हैं आप क्यों नहीं हो, तो मैं उनको सिर्फ एक ही बात करूँ, मैं एजेंडा के साथ सोशलाइज नहीं कर सकती। मैं बात करने को इतनी बात कर सकती हूँ कि मतलब आई कैन, इफ Joy complains she talks a lot, I can talk a lot. It's not, I can have great conversations, but I cannot have conversations with an agenda. So मेरा जो काम हो, मेरे काम से काम मिलेगा मुझे, मेरे सोशलाइजिंग से काम नहीं मिल सकता। मेरे को ना सोशल क्लाइंबर का टैग से डर लगता है, और वो एजेंडा से जो सोशलाइज करते हैं ना, वो वाले टैग से डर लगता है मुझे। किसी ने कल मुड़ के ये बोल दिया कि इसको तो इसलिए काम मिला है, या और इसको इसलिए मिला है क्योंकि ये मतलब वहाँ नेटवर्किंग अच्छी करती है, तो मेरे तो सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत धक्का लगेगा, तो वो नहीं सहन कर सकती मैं। हाउ नाइस। आपके फादर क्या करते थे? अब तो रिटायर हो गए, पहले एक रियल एस्टेट कंपनी में एक रेगुलर जॉब करते थे। एंड मदर? हाउसवाइफ। वाओ, तो इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया, इतना ड्राइव कहाँ से आया? I don't know, maybe just because के as I said मैं बहुत questions पूछती थी, और जब वो आंसर नहीं कर पाते थे तो वे थक के बोलते थे जो करना है करते को। So फिर I think वो उन्होंने करने दिया काफी कुछ मेरे को जो करना था, इस वजह से भी। और I don't know, I was probably born with the instinct of trying to do something that is probably not expected out of me, but I want to do because I think it's right. You know, Kangana was asked in a show, somebody said कि वो कौन सा खान है जो आप चाहती हैं कि काश वो सिंगल होता तो मेरे साथ उनकी जोड़ी बनती। And Kangana said, why are you so obsessed about actors? इस दुनिया के आगे भी एक बहुत खूबसूरत दुनिया है जिसको एंजॉय कीजिए, उसमें वेंचर कीजिए, उसको एक्सपीरियंस कीजिए। डू यू थिंक कि ये जो दुनिया है एक्टिंग की और फिल्म वर्ल्ड, उसके बाहर भी आपका पार्टिसिपेशन उतना ही है जितना यहाँ है? Of course, I mean, I think I kind of proved that time and again that acting is a part of my life. It is not my whole life. Then what is your whole life? क्या करती हैं आप? So many other things. So I have a wedding planning company. I have a team that I own, a badminton team that I own. I love sports. I follow sports. I travel and see different matches around. So, and I have a family and friend circle who have no idea about films and how it's done. They don't even watch my own films. उनको जबरदस्ती दिखानी पड़ती है मुझे. So conversations films के बारे में होती ही नहीं है. So film is a job for me. Okay, so I go and do my job and come back home to a normal life, a normal family, and I have businesses other than this which help me unwind कि अच्छा इसमें ज्यादा हो गया तो थोड़ा सा अभी rejuvenate करना है, reboot करना है, तो कुछ और में एनर्जी लगाते हैं, फिर वो करके थोड़ा सा फ्रेश हो जाती हूँ, फिर वापस आती हूँ। So I have lot of असली दुनिया में जाती हैं जो कैरेक्टर्स आप प्ले करती हैं। हाँ, exact. I think that's the best way for an actor to grow. Exactly. अगर आप देखोगे नहीं, आपने जी नहीं है जूहू बैंड्रा से बाहर अपनी लाइफ, तो आप कैसे पोर्ट्रे करने वाले हो वो कैरेक्टर्स? I mean, some people are blessed, maybe they can, but mostly I feel the fact that I've lived a normal life really helps me to be normal on screen. Yeah, my father was posted in 10 different cities. तो वो सारी भाषाएं आती है, गली की भी, मेरे I really am very envious of people who know many languages. मेरे को तो तेलुगु तमिल जो सीखते सीखते जो मेरी जान लगी है, फाइनली अभी तेलुगु बोलनी आ गई है थोड़ी बहुत, तमिल अभी भी थोड़ी सी इन प्रोसेस है, बट मैं इतनी जेलस होती ना जिन लोगों को लैंग्वेजेस आती हैं, क्योंकि मुझे पता है ये मेरी स्ट्रेंथ नहीं है। मैंने कहा वाह यार इतनी भाषाएं। बट दिल्ली वाली भाषा जो आप बोलती हैं, दैट इज पेइंग ऑफ। वही तो रीजन है आपकी सक्सेस का। एक बहुत आई थिंक कई लोग मुझे सिर्फ इसलिए लेते हैं पिक्चरों में शायद कि मैं हिंदी में ढंग से बात कर सकती हूँ, जो मुझे बहुत अजीब लगता है। मैंने कहा हिंदी में तो बात करूंगी, यहाँ इस देश में रहती हूँ और ऐसी सिटी की हूँ जहाँ पे ये भाषा बोली जाती है रोज, तो मुझे ये तो आना ही चाहिए ना। मतलब नहीं, यू वर्क विद मिस्टर बच्चन ट्वाइस। क्या ऐसी चीज आपने उनसे सीखी जो सिर्फ उनके साथ रह के ही सीखी जा सकती है? कि देखो वो इनका जो इस उम्र में एक्साइटमेंट है ना काम करने का, जो कि 3 घंटे सो के भी लगे रहते हैं पूरा दिन। मैं उनसे कई बार कंप्लेन करती हूँ इस बात की कि सर यार आप सोया करो ना थोड़ा बहुत, आप इतना क्यों काम करते हो यार? मतलब यू नीड टू have, as I keep telling you, you need to have life beyond this work, films or this work. He disagrees. He wants to live his entire day working on films or something related to films, and I'm like, अगर मैं इस इंसान के आधे enthusiasm से भी उस उम्र में काम करूँ ना, तो I think मैं बहुत successful होंगी। क्या बात है। And lastly, just one fun thing that you need to do. Left hand अंदर, right hand बाहर. Can you do this trick? अंदर और बाहर? हाँ। नहीं यार ये बहुत डिफिकल्ट है। अंदर बाहर नहीं हो रहा यार, ये ट्रिक नहीं होगी। Okay, look at me. Inside, outside. अरे यार
शायद धीरे धीरे करके हो जाए, नहीं होना है आगे। Whatever you're doing it perfect, girl. या प्लीज वो ही हो जाए बहुत Yeah, है। keep doing it, Missy. Thank you All the so best. much, Thank you Arpita. so much Thank for you. being what you are.